think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. हे गाइस, दिस इज मी नोमैडिक लॉ वन मोर टाइम बैक अगेन। और जैसा कि आप देख रहे हैं, एक और बेहतरीन कॉल ऑफ ड्यूटी का रोस्टर हमारे साथ अवेलेबल है, फोर्स वन। जी हाँ, फोर्स वन का आज रोस्टर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए कुछ बेहतरीन बातचीत इनसे भी स्टार्ट करते हैं। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो इनसे भी पूछे जाएंगे और फिर देखते हैं कि इनका जो है वो जवाब किस तरीके से आने वाला है। So sir, I'm playing this game. I started this game from lockdown, and I'm playing FPS games from around 3 or 4 years. I'm from Chandigarh, and it's been so good journey till Force One, and I'm enjoying this game a lot, and I spend almost 3 or 4 hours every day on this game. I'm enjoying it a lot. Hello everyone, I am Abhay. My real name is Nanda Kishore and I'm the IGL for Team Force One. So I have been playing video games for a long time, not specifically on mobile or anything. I've been playing on console. I played Overwatch competitively on console. I played a bit of Rainbow Six Siege, and I switched over to PC. And then Call of Duty Mobile came out, and then like during class break and all, I used to play Season 1 and stuff. Just to play in between, and then once we started getting quarantine and holidays and all, I started putting more and more time into it, and here we are. Hi, my name is Blood. My real name is Prateek Ryan, and I have been with the T2P for 6 to 7 months now. We have joined F1, and it's been a great journey, and I'm looking forward to winning more tournaments. Thank you. Hi guys, my name is Chris, also known as Vegan. So basically, for me, I've been playing competitive games from my young age. My first competitive started from Black Ops 3, and then went to Fortnite. Then it was like PC and tournaments and all that. I played for an organization before, like other competitive games, and I personally never thought I'd be going pro in a mobile game because like I used to be a critic who never likes mobile games. And Call of Duty Mobile was different. I started playing back in the beta version. Then, started improving. And I was still like not a really good player when I joined T2P. But after I did that, these guys helped me a lot. And they are the reason like I'm at this position right now. So I'm grateful for that. And I'm thankful to Force One for this opportunity. So this is my first competitive game. So, but I've been playing like with friends like PUBG and stuff. So when I came, lockdown gave me an opportunity to be part of this. So I'm happy I'm here. Hi, I'm Shashwat. I started playing Call of Duty in season 3. I've been playing a lot more during quarantine. And yeah, I'm honored to join Force One. Hello, Nomadic sir. Thank you for giving this opportunity to us. And my real name is संगीत राय. It's just so simple कि मैंने म्यूजिक रख लिया और आपको भी लगता है कि काफ़ी सिंपल नेम है. That's actually fun for me. और मैंने भी कॉम्पिटिटिव गेम 3-4 साल से खेला है, बट क्वारंटीन में मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी में टाइम दिया और अभी तक जो है आप देख पा रहे हैं हमारी टीम काफ़ी सक्सेसफुल हो रही है फिलहाल के लिए. थैंक यू एवरीवन एक ब्रीफ इंट्रो देने के लिए। और इसी के साथ गाइज ना सिर्फ हमारे साथ पार्टिसिपेंट बल्कि यहाँ पर फोर्स वन के ऑनर भी हमारे साथ अवेलेबल है। पूरा टीटीपू का रोस्टर जो है वो फोर्स वन में बदल चुका है, एंड इसके पहले भी आप फोर्स वन का एक रोस्टर जो है वो हैंडल कर चुके हैं। तो अब आपका इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मेरा कहना है कि लाइक हमने लास्ट 1 मंथ हमने एक और इससे पहले एक स्क्वाड को हमने लिया था अपने साथ, एंड दे परफॉर्म गुड, नॉट दैट गुड बट इट वाज एट पार. बट आफ्टर वाचिंग दीज गाइज प्ले एंड आफ्टर वाचिंग द वे दीज गाइज आर प्लेइंग, और इन्होंने जिस टाइप से नाम बनाया कम्युनिटी में, तो आवर चॉइस वाज कि नहीं, लेट्स पिक देम अप एंड लेट्स सपोर्ट देम so that they can go more further, because हर प्लेयर एक अपॉर्चुनिटी का वेट करता है.
एंड दिस कैन बी देयर अपॉर्चुनिटी। लाइक जब इनको सिलेक्शन किया था, मेरे एक और पार्टनर है रवि करके, ही इज फ्रॉम राजकोट। तो इसमें ये है कि वो सारा हैंडल करता है टीम सिलेक्शन एंड ऑल, जो भी करना है उसको करना है। मैं पार्ट देखता हूँ फाइनेंशियल, टीम सिलेक्शन, रोस्टर सिलेक्शन, प्लस कौन से टूर्नामेंट्स खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने हैं, वो सब सारा वो रवि के हाथ में रहता है। एंड वी हैव अ टोटल प्रोफेशनल टीम। लाइक मैं हूँ, रवि है जो पूरी सब चीज़ हैंडल करता है। देन वी हैव अ मैनेजर अमरीश, जो सारी टूर्नामेंट, सारे स्क्रिम्स में जो है, मतलब इनको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे हम उनको जो है पहुँचा सकते हैं। दैट्स द पावर ऑफ द टीम दैट वी हैव राइट नाउ, जो हमारी मैनेजमेंट टीम है। वी हैव आवर सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर्स। तो राइट नाउ वी नीडेड सच टाइप ऑफ टीम। एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है एंड कंसिस्टेंट है, दैट्स व्हाट वी नीडेड। और लास्ट टाइम जो हमने गलती की पिछले स्क्वाड के साथ, कि हमने उनको अलग अलग जगह से इकट्ठा करके एक स्क्वाड बना कर दिया, बट इधर हमने यही इस बार चेंज किया कि वी टुक अ होल स्क्वाड एंड इंटरेस्टेड द नेम फोर्स वेंट टू देम। अब इसका नाम बनाना इनके हाथ में, नॉट इन माइंड। हाँ, बैकग्राउंड में behind your all of them we are there, that you don't have to worry about anything, just concentrate on game. That's the most important thing that you guys have to do. That's it. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अभी से ही। जैसा कि उन्होंने अभी हमें बताया था कि सबसे पहले वो ओवरवॉच खेलते थे एंड ओवरवॉच के बाद उन्होंने जो है वो ये मोबाइल कॉल ऑफ ड्यूटी में स्विच किया। तो कितना मुश्किल आई थिंक हुआ ये कीबोर्ड माउस से लेके सीधा टच पे आना? Kind of weird, to be honest, but then like I used to play PUBG with my friends and all, right? So I play with them, and then every now whenever I go to friends' house, there's always some game to play. So I used to play like that, and slowly, like beginning and all, I wasn't this good. I was all right, but then it took me a while, and then like transferring to keyboard and mouse to this isn't that hard, because the experience and knowledge that I had in that game will help me to play in this. Like that general game awareness, when to peek a sniper, when to not, how to push in, and then how to track enemies, all that, and like how to manage everything. That all those skills transfer and help me like switch over easily. ओके, एक चीज़ और जो हम यहाँ पर जो भी हमारे गेस्ट आते हैं हम सबसे पूछते हैं, एक नेम की जो है वो बैकग्राउंड स्टोरी सभी के साथ होती है। लाइक म्यूज़िक के बारे में हम जानते हैं कि संगीत राय उनका नाम है, तो संगीत से उठा के उन्होंने उनको म्यूजिक लग दिया एंड काफ़ी रिलेटेबल भी है वो। तो ऐसी कोई नेम स्टोरी आप सभी शेयर कर सकते हैं, अगर आपके नाम के पीछे की कोई बैकग्राउंड स्टोरी है, इसी वजह से आपका नाम ऐसा पड़ा है? कोई भी स्टार्ट कर सकता है। मैं तो सबसे पहले सुनूंगा कि ये ब्रेड क्यों है। Unfortunately sir, मैं आपको सीक्रेट नहीं बता सकता। ये मैंने टॉप सीक्रेट नेम है। Only the select few people know, such as T2P Vector, but I can't reveal any more secrets. Come on man, यार ये कॉल ऑफ ड्यूटी की कम्युनिटी जानना चाहती है। Come on bro, Come on, Brad. get out of the bag. Sincere apologies guys, no secrets revealed. ठीक, एक काम कर ब्रेड, चल ठीक है, don't If it's a secret, I wanna hear it, man. Go for it. Yeah, it is that you guys, if we don't trust each other, then it won't be a good thing. So you need to share it with us. Even we don't know the secret behind it. This isn't about the trust between the team, because this video is going to go public. So unfortunately, I have to keep my mouth shut, guys. Okay, no issues. So just one thing, you just tell it. How did you come up with this name? Honestly, that's the secret. I can't spill. Sorry, guys. His name was not Brad. There was something else in front of that name. That he removed some days ago, na? That he removed some days ago. He did remove, but it was banned as well. Yeah, it was banned. Got that's banned why as he's well. unable to. That's why he's not telling that, na? Yeah, guys. तो सर 3 साल पहले मैंने क्रिटिकल ऑप्स खेलनी शुरू करी थी दोस्तों के साथ। जिम जाता था तो जिम मेरे साथ दोस्त जाते थे, तो एक दिन जिम बंद था तो हमने गेम बाहर बैठ के इंस्टॉल करी, तो गेम खेलनी शुरू करी। तो गेम खेलते गए तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे किल्स लिए गेम में। तो माय फ्रेंड सेड कि इसने तो भाई बहुत शिकार कर दिए।
तो वो देख के मैंने अपना नाम वहाँ से शिकारी रखा। तो उसके बाद क्रिटिकल ऑप्स मैंने 2 साल खेली, फिर पबजी खेली 1 साल, तो तब से लेके अब तक फिर मेरा नाम शिकारी, तब से शिकारी रखा है मैंने नाम। ब्रैड तो बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, म्यूजिक के बारे में हम जान चुके हैं, शिकारी ने अभी बता ही दिया है। जीगन, एनी बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ योर नेम? Basically, it came from Black Ops time of Call of Duty, where like I am like kind of an internet geek who just like search random stuff on internet. That time I found like a list of demon names, and Zagan is one of the name of a demon. So I just like changed the changed the A to E, and that came Zagan. Okay. It used to be Zagan Frost, and just cut the Frost out and just Zagan. Okay, Og? So for me, it was like I just wanted to get a name that didn't have any meaning. So I was searching, and then I found this name called Ashrob, which is like has some relation with my name. But then it was too big, and it sounded like an Indian mythical monster. So I was like, I'll make it short and then call it off. Okay. Blood, actually Blood का तो मतलब काफी खतरनाक सा नाम है। मैं एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ अभी, और तो मेरे को कुछ रखना था जो बॉडी से कुछ रिलेटेड हो, और खून भी बहुत बहता है इस गेम में, शूटिंग गेम है, तो उसको देखते हुए मैंने ब्लड रख लिया। Okay, nice. Abhis? Bro, for me, I usually like sometimes I tend to forget things. So I used to like note down like cool words that came up to me. I was playing, I used to read newspaper or something. Then some word will come up like, oh, this is nice. I have to put it down. And I had like a list of 20, 25 names written. So I was searching for the name that like when someone sees, they'll be like, oh, yo, he's in front of me. I will die now. Like I wanted to strike fear. So I thought Abyss is like depth and dark. And so whenever someone sees me, they'll be scared. So I thought I'll go for something like that. Short and sweet, but something intimidating. डेफिनेटली आपका नाम बहुत बढ़िया है, और ऊपर से जो स्नाइपिंग स्किल्स हैं आपके पास वो तो पूरी कम्युनिटी जानती है कि अबिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्नाइपर आउट देयर। एक चीज़ यहाँ पर सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, जैसे कि रिसेंटली अभी न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ने जो है वो पबजी बैन कर दिया है, तो उससे आपको क्या लगता है कि कॉल ऑफ ड्यूटी को कितना फ़ायदा होने वाला है, या फिर और भी गेम्स है? इसमें 2 क्वेश्चन एक्चुअली मैं इंक्लूड कर रहा हूँ एक साथ, 2 मिक्सअप क्वेश्चन है। एक सबसे पहले कि कॉल ऑफ ड्यूटी के बैटल रॉयल को कितना फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि पबजी बैटल रॉयल गेम था। दूसरा, गेम बैन हुआ, बहुत सारे लोग हैं जो वो पबजी वाले दूसरा अपना अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो उनके पास 2 अल्टरनेटिव अवेलेबल है, कॉल ऑफ ड्यूटी एंड फ्री फायर, जो कि फेमस गेम्स में आते हैं। वो बैटल रॉयल अवेलेबल है, प्लस कॉल ऑफ ड्यूटी के मल्टीप्लेयर फॉर्मेट को कितना फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ है वो आप बता सकते हैं। I guess I can say. I think usually if the PUBG audience is coming to Call of Duty, they will play this thing first, Battle Royale first, because that is what they're used to. But then like even in PUBG, when they're warming up and all, they play TDM now. So that way they'll slowly start playing multiplayer, and then they'll develop interest. Either the competitive scene will grow or not for the multiplayer side, I don't know, because Battle Royale will definitely benefit. But then the player base will definitely increase. There'll be a bigger fan base for both multiplayer and Battle Royale. So more and more people will slowly get interested. जो भी पबजी से आएंगे कॉल ऑफ ड्यूटी में, वो पहले बीआर ही ट्राई करेंगे, लेकिन बीआर में कोई इतना ऑप्टिमाइज लगता नहीं है कॉल ऑफ ड्यूटी का जितना पबजी था। पबजी का बीआर ज्यादा अच्छा था, और अगर वो मल्टीप्लेयर ट्राई करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी का तो वो बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज है, और अगर उसको ट्राई करते तो वापस पबजी खेलना भी भूल जाएंगे मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स। मैं भूल गया था वापस पबजी खेलना, तो इतना पसंद आया था। तो अगर मेरे को गेम प्ले ब्रो, लाइक द थिंग इज ना, अगर कोई नया and all that, the jump distance is too high, and you know people won't get used to it. Like it will take a very long time for them to really play multiplayer in a high level, and they'll not be experiencing desync and all, and they're used to hipfire. Most of the time just rush into the building, hipfire and all that kill. Like they have no recoil, nothing, and you know in this you have to watch all of that. And yeah, think about it. Like it's gonna be hard for them. सर मेन डिफरेंस यहाँ पे मल्टीप्लेयर में यह आ जाता है कि वहाँ पे वो टीपीपी खेलते हैं, यहाँ पे वो एफपीपी खेलते हैं, तो उनको यहाँ पे एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल, यहाँ से थोड़ा मुश्किल होगा एडजस्ट करना। प्लस जो नया प्लेयर कोई पबजी से आता है, वो सीयूडी में आता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सीयूडी खेलना शुरू करें, वो शुरू करते ही 2 दिन खेलते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आया या कुछ दिक्कत रही तो वो छोड़ के चले जाते हैं कि नो वी डिडंट लाइक द गेम एंड ऑल। मेरे साथ खुद हुआ है, मुझे गेम थोड़ी अजीब सी लगी थी शुरू में, अच्छी नहीं लगी, तो मैंने एक बार गेम लॉकडाउन में ही इंस्टॉल करी थी,
एंड लॉकडाउन में ही मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया था. देन आई डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू प्ले बिकॉज आई गॉट बोर्ड ऑफ PUBG. देन आई इंस्टॉल्ड इट अगेन. एंड उसके बाद फिर जब से शुरू करा फिर तो मतलब तब आज से यहाँ मेरा पे हैं, रुके ही नहीं है और आगे रुकेंगे भी नहीं. हाँ ओके, जी, हाँ एक जी, हाँ चीज़ जी. एक चीज़ और यहाँ पर मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा. लाइक पबजी में क्या है कि प्रोनर्स का गेम ज़्यादा रहता था. लाइक आप ओपन में जाके लेट गए, घास में जाके लेट गए, लास्ट का सर्कल चल रहा है तो शायद सारे प्रोन करके लेटे हुए आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है, उठेंगे तो भाई मार दिए जाएंगे. लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी में बिल्कुल ही डिफरेंट सीन है. आप प्रोन करके भी रहोगे तो भी आपके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल है कि आप आसपास के प्लेयर्स को जो है वो रिवील कर सकते हैं. ठीक है, और इसमें एक क्लासेस अलग अलग है. लाइक किसी के पास कुछ एबिलिटी है, किसी के पास कुछ एबिलिटी है. और गन्स के रिकॉइल की अगर मैं बात करूँ तो पबजी में क्या है कि 6x एंड 4x लगाने के बाद ना रिकॉइल कंट्रोल करना कुछ गन्स में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी का बिल्कुल अलग सिनेरियो है. इसमें एक तो आप अभी गन्स स्मिथ की जो अपडेट आई है उसमें क्या है कि लोड आउट आप पहले से ही सेट करके अंदर गेम में जा सकते हो, तो वो भी चीज़ है. तो मतलब डिफरेंसेस तो बहुत ज़्यादा है. तो आई थिंक अडेप्ट करना बहुत मुश्किल होने वाला है पबजी वालों के लिए अगर वो कॉल ऑफ ड्यूटी VR पे आते हैं. जबकि जो TDM वो लोग खेलते हैं तो TDM और मल्टीप्लेयर काइंडा सेम थिंग है. मतलब पबजी ने ही अडेप्ट किया है कॉल ऑफ ड्यूटी जी. से. TDM सबसे पहले आपका कॉल ऑफ ड्यूटी का मेन जो है वो मल्टीप्लेयर से ही स्टार्ट हुआ है, एंड पबजी ने उसको अडेप्ट करके अपने में TDM नाम से डाल दिया, टीम डेथ मैच, जबकि यहाँ पे वो मल्टीप्लेयर के नाम से जाना जाता है. तो वो एक चीज़ उनके लिए अडेप्ट करना आसान होगा. तो मुझे लग रहा है क्राउड जो है वो शायद मल्टीप्लेयर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा कंपेयर टू बैटल रॉयल. क्या सर, बैटल रॉयल और PUBG एंड COD का बिल्कुल ही अलग अलग है. बहुत आई लेफ्ट डिफरेंट है. PUBG. यस. मैंने PUBG छोड़ी ही इसलिए थी कि लोग एंड वाले सर्कल में या बहुत ज्यादा कैंप करने लगे थे PUBG में लोग. तो COD में इसका सीन बिल्कुल अलग है. मैं COD बैटल रॉयल कभी आज तक एक मैच भी नहीं देखा, खेला नहीं आज तक एक मैच भी, बट मैंने वीडियोस देखी हैं तो मुझे उस हिसाब से काफी अच्छा लगता है. बहुत डिफरेंट, अलग अलग हैं. तो जो खेलेगा शुरू में थोड़ा टाइम उसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा. चीज़ मैं यहाँ पे शुभम सर से पूछना चाहूँगा. लाइक फोर्स 1 का ये अभी हम मल्टीप्लेयर का रोस्टर देख रहे हैं. यही रोस्टर आपका जो है वो बैटल रॉयल का भी होगा या फिर बैटल रॉयल के लिए कोई अलग रोस्टर अवेलेबल है आपके पास? इसमें ये है कि अभी तो हमने फोकस तो मल्टीप्लेयर पे ही रखा था. एंड जिस टाइप से अभी हम देख रहे हैं कि जिस टाइप से कंपटीशन में शिफ्ट आ रहे हैं, सो वी विल वॉच इट आउट. एंड फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली ये रहेंगे, इन्हीं को हम चांस देंगे. बट स्टिल इफ अगर इनको नहीं अडेप्ट कर पाते तो हम इनका नेचुरल गेम प्ले खराब नहीं करना चाहेंगे. जो इनका नेचुरल गेम प्ले है वी विल स्टिक विद दैट एंड वी विल हैव अनदर रोस्टर फॉर बैटल रॉयल. ओके, बट राइट नाउ वी हैव नॉट डिसाइडेड दैट एंड वी आर गोइंग टू स्टिक विद देम. अभी हमारी 2-3 बार और बातें होंगी, तब फिर इनसे हम पूरा समझेंगे दैट वेदर दे आर कंफर्टेबल इन मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल. तो इनके ऊपर है, लाइक इट्स अबाउट देयर कि वो किस पे ज्यादा फोकस करके बेटर कर सकते. तो वी डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय देयर नेचुरल गेम प्ले. डेफिनेटली नेचुरल गेम प्ले तो बहुत ही प्यारा है इन सभी लोगों का. हमने इवन टीम कोऑर्डिनेशन भी इनका बहुत प्यारा बिल्ड हो चुका है. तो आई थिंक मल्टीप्लेयर तो इनका नहीं जाने वाला है. ये एड ऑन जरूर होगा बैटल रॉयल, बट मल्टीप्लेयर तो है इनका स्ट्रॉन्ग. ये बात तो मैं भी मान चाहूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे गेम्स इनके देखे हुए हैं, स्पेक्टेट किए हुए हैं, उन पर कास्टिंग की हुई है, तो आई नो दीज गाइस. ओके, एक चीज़ और यहाँ पे एक अभी रिसेंट न्यूज़ और आई है कि एक इंडियन गेम जो है वो रिलीज़ होने वाला है, डेट इज़ फौजी. अगर आप लोगों ने, आई डोंट नो किसी ने सुना है या नहीं सुना है, मे बी कुछ लोगों ने सुना होगा. एंड फीचरिंग अक्षय कुमार, ऑब्वियसली अक्षय कुमार को उसमें फीचर किया गया है. तो कोई पॉइंट मतलब थॉट उसके ऊपर, लाइक PUBG बैन हुआ, क्या बैन इसीलिए किया गया था कि फौजी आने वाला है, या मतलब कुछ लग रहा है आपको कुछ बिजनेस टाइप का चल रहा है वहाँ पे? लाइक एनी व्यूज आपके उस पर? तो नहीं होगा सर, कि अगर बिजनेस टाइप चलता तो फिर एक्चुअली न्यूज आ रही है कि अब ये पक्का नहीं है कि है सच या नहीं, कि रिलायंस बाय कर रहा है PUBG के साथ, कुछ स्पॉन्सर वो कर रहा है, कोलैबोरेशन वो कर रहा है. न्यूज़ मैं आपको दूंगा, वो न्यूज़ मैं आपको दूंगा, मुझे पता है वो न्यूज़. वो अब कंफर्म नहीं है. हाँ, वो कंफर्म नहीं है कि क्या है क्या नहीं. तो अगर वो न्यूज़ सच है तो फिर ये बिजनेस रिलेटेड तो नहीं होगा. फिर तो ऐसी लॉन्च करा है कि अगर उन्होंने बाय करना, अगर अंबानी नहीं बाय करना होता फिर ये चीज़ बीच में ना आती. क्योंकि फौजी का जो है वो ट्रेलर भी आउट हो गया है कल.
एक बेसिक ट्रेलर हमने देखा है लाइक मतलब मैंने देखा, आई डोंट नो दैट इज फैन मेड और वो एक्चुअल रियल भी है, क्योंकि एक चीज और मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, उन्होंने जो पोस्टर भी बनाया है ना उसका, उसकी इमेज यार वो भी कॉपी किया है वो उन्होंने। शटर स्टॉक से स्टॉक इमेज उन्होंने उठाई हुई है और उसका पोस्टर डाल दिया उन्होंने, मतलब कोई मेहनत नहीं की है। वी आर टिपिकल इंडियंस, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, वी आर सो लेजी। सर एक्चुअली गेमिंग इतनी एडवांस हो गई है, अगर आप गेम को अच्छा नहीं बनाओगे तो नो वन विल डाउनलोड इट। डेफिनेटली यार, ये तो बात। ओके एक चीज़ यहाँ पर जैसे कुछ प्लेयरों ने बताई कि क्रिटिकल ऑप्स में भी वो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में थे, एंड उसके बाद वो जो है यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में आए तो उनके लिए अडेप्ट करना काफ़ी आसान था। बट ये टीम जो आपकी बिल्ड हुई है इसमें कुछ प्लेयर क्रिटिकल ऑप्स के आए हैं, एंड स्पेशली अभी जो है वो पीसी गेमिंग से सीधे मोबाइल गेमिंग में आए हैं, तो मतलब अलग अलग जूनियर से आप लोग आए हुए, तो कितना मुश्किल या कितना आसान रहा आपके लिए एक टीम सिनर्जी बिल्ड करना, जो आज हमें देखने को मिल रही है? डेफिनेटली वो आज की बात है, लेकिन जब स्टार्टअप हुआ था तब कितना मुश्किल था आपके लिए? सर एक्चुअली क्रिटिकल ऑप्स FPS गेम है जस्ट लाइक COD। तो अगर आप क्रिटिकल ऑप्स खेल के जो लोग क्रिटिकल ऑप्स खेल के COD में आए हैं उनके लिए अडेप्ट करना वो क्वाइट इजी, बहुत इजी था। क्रिटिकल ऑप्स इज अ हार्ड गेम, मतलब इसमें COD एम गेम प्लस मूवमेंट गेम है, तो और COPS जो है वो आपकी मेन है मूवमेंट एम गेम, मेनली एम गेम। आपको रिकॉल बहुत ज्यादा होता है, रिकॉल कंट्रोल करना पड़ता है, आपको मेन उसमें एम कंट्रोल करना है, तो आपका कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। तो उसके बाद अगर आप PUBG से अगर आप COD आ रहे हो और क्रिटिकल ऑप्स से COD आ रहे हो, तो सर PUBG से अगर आप आ रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अडेप्ट करने में मल्टीप्लेयर मोड में, और अगर क्रिटिकल ऑप्स से आ रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, यू विल लव इट। एंड धीरे धीरे करके सर सब फटाफट अडेप्ट हो जाता है क्रिटिकल ऑप्स के लिए प्लेयर्स के लिए। इवन MYM के प्लेयर्स मेनली जो हैं वो क्रिटिकल ऑप्स से आए हैं। हाँ, वो उनकी 80% टीम क्रिटिकल ऑप्स से ही आई है, और मजे की बात यह है कि उनमें से सारे एक दूसरे को जानते भी थे पहले से, और सब हम सर इकट्ठे एक साथ ही खेलते थे हम। ओके, कोई ऐड ऑन किसी की तरफ से लाइक अडेप्ट करना मुश्किल रहा या आसान रहा, या क्या चीजें उनको फेस करनी पड़ी? स्टार्टिंग में सिनेरियो नहीं थी, बिल्ड करनी पड़ी हमको, बैठ के स्ट्रैट्स बनानी पड़ी, काफ़ी डिस्कशंस करनी पड़ी, तब जाके स्ट्रॉन्ग हुई है। पता चलता है मैप में कि कौन कहाँ पे खेल रहा है। तो कॉल आउट्स वगैरह भी पहले स्टार्टिंग में इतने नहीं आते थे जब कॉम्पिटिटिव स्टार्ट किया था हमने, लेकिन अब सब कुछ पॉइंट पे हो रहा है हमारे साथ, और आगे भी इंक्रीज अच्छा इम्प्रूव होता रहेगा। चीज़ और यहाँ पर जैसे अभी गन्स स्मिथ की अपडेट आई थी, तो बहुत सारी इवन बड़ी बड़ी टीम्स को भी अडेप्ट करने में ना बहुत टाइम लग गया, एंड इवन अभी भी वो अडेप्ट कर ही रहे हैं गन्स स्मिथ को। उतना अच्छा जो परफॉर्मेंस जो सीज़न 8 में उन्होंने दिया, सीज़न 9 में आके उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डल हो गई है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सीज़न 10 से? लाइक सीज़न 10 की गलतियाँ सुधरेंगी या फिर और ज़्यादा गेम जो है वो स्ट्रगल होने वाला है टीम्स के लिए? I feel like they'll get adapted to it by season 10 because they have had enough time now. They've had around a month. Plus, WC was there now. So people were forced to adapt. At least they had to find that one gun for themselves. And plus, right now, the meta is looking kind of clear as to which weapons are good and which weapons are bad. So by the time season 10 comes, I don't think there are much balance changes by season 10. So I feel like teams will adapt pretty soon. Okay. Any add-on किसी की तरफ से? हाँ, सीजन 8 से सीजन 9 में आने में थोड़ा टाइम लगा था, बहुत टाइम लगा था एडजस्ट करने में। आई वाज लाइक कि मैं नहीं खेल रहा है गेम, क्योंकि सब कुछ ही बदल दिया। जो गन्स मैं यूज़ करता था वो गन्स बिल्कुल ही बेकार कर दी उन्होंने, तो वो मैं यूज़ अब उसके लिए बिल्कुल ही सब कुछ चेंज करना पड़ा मेरे को। तो धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगा, 1 वीक लगा, एंड देन आई वाज लाइक आई लव दिस गेम। एंड उसके बाद मैं अपने लोड आउट शेयर करने लगा कि अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आई विल हेल्प इट आउट। ओके, मतलब पहले आपने फिगर आउट कर लिया कि क्या क्या है, उसके बाद ओके अभी हेल्प चाहिए तो मेरे पास आ जाओ। ओके, एक क्वेश्चन जो हम हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं हम सबसे पूछते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो अलग अलग रीजन से वो बिलोंग करते हैं। कोई फेवरेट फूड आपका, क्योंकि रीजनल फूड कई बार ऐसे होते हैं जो हमने नाम भी जो है वो पहली बार ही सुने होते हैं उनके बारे में, मतलब आपसे हमें पता चलेगा कि कोई ऐसा स्पेशल फूड वहाँ पे अवेलेबल है जो आपको पसंद है। पसंद का मतलब कि आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपको अच्छा लगता है। स्टार्ट करते हैं शिकारी आपसे ही। सर एक्चुअली मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं हूँ पंजाबी, तो मेरा जो फेवरेट जो फूड है, जो अगर मैं बाहर जाऊँ और खाना पसंद करता हूँ, वो है चना भटूरा।
ओके, बट भटूरे। ड्यू टू लॉकडाउन ड्यू टू लॉकडाउन बहुत टाइम से खाया नहीं, तो उसके बाद मैंने बीच में वाइफ को कहा अपनी, एक्चुअली आई एम मैरिड, आई एम 27 years old, ओके। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा तो उन्होंने फिर मेरे को बना के दिया। अरे मतलब चलो ये अच्छी बात है कि घर में ही मिल गया फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। म्यूजिक। राजन यार, यू आर वेरी लकी। मैं अकेला रहता हूँ और मुझे मॉम डैड का जो बनाया हुआ खाना काफ़ी पसंद आता है। उनकी तरफ से दम बिरयानी मेरा फेवरेट है। आई एम मिसिंग देम। आई होप कि जल्दी आ जाए आउट ऑफ इंडिया से, यहाँ पे फिर खाने मिलेगा। क्या करें, ओके। क्वारंटीन में फंसे। एंडरसन। For me, favorite food like here probably dosa. Okay, dosa. I mean, like the basic, typical. Typical South Indian food, huh? Dosa and idli Yeah. and all. Okay. Abis? I'm also South Indian only, bro. But then my favorite food is roti curry, because I'm a vegetarian, so not many options. So roti or any curry, or pani puri. Pani puri or pani puri. Chaat, pani अभी puri, masala lockdown puri, में- anything. I'll have. 3 month लॉकडाउन में पूरा बंद था, तो पानी पूरी कैसे? Bro, I haven't had once also, bro. So sad. Oh, that's sad actually. Og? Oh, sir, I like anything and everything. I mean, food-wise, I like to eat everything. So, favorites or not? अच्छा, कोई मतलब फेवरेट नहीं है, फूडी हो आप, कुछ भी आने का बस भूख लग रही है तो खा लो। हाँ, like, सब कुछ पसंद आता है बस। ओके, नाइस। Nice. ब्लड? मैं यहाँ पे हरियाणा से हूँ, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ट्रेडिशनल खाना होता नहीं है, बस ये दिमाग पराठे खाता वगैरह चलते हैं। हाँ। यहाँ पराठे होते हैं, पराठे काफी फेमस है यहाँ पे, वो खाने पसंद है। ओके, ब्रेड? यार ब्रेड प्लीज And ये मत बोलना personally, ब्रेड पसंद, ब्रेड बटर पसंद है। Honestly, bread के बहुत different types होते हैं, whole wheat, bread on butter, bread peanut butter, सब कुछ पसंद है मुझे, toast. So that's my personal liking. शुभम सर, आपका फेवरेट फूड? For me, I am from Gujarat और मेरे लिए सबसे अच्छा फूड है दाल बाटी। ओके, दाल बाटी। हाँ, मतलब दैट्स माय फेवरेट, दाल बाटी। क्योंकि उसके लिए हम लोग 40-45 किलोमीटर जाते थे, बस एक जगह पे दाल बाटी मिलती थी उसका खाने के लिए। So that's why it's my favorite food. ओके, एंड चलिए यहाँ पर हमारे फोर्स 1 के ऑनर साहब भी अवेलेबल है, तो टीम से ना पूछने की जगह मैं शुभम सर आपसे ही पूछता हूँ कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना बूट कैंप अवेलेबल है, ताकि टीम सिनर्जी जो है वो टीम कोऑर्डिनेशन एक अच्छा बिल्ड हो सके एंड 5 प्लेयर एक पर्टिकुलर जगह पे खेल सके। उससे 2-3 फायदे होते हैं। एक, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, 5 बंदे एक जगह बैठे हुए हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। दूसरा, टीम कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया बनता है। तीसरा, सबके पास एक ही तरह का इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, तो लाइक अगर एक की 40 पिंग आ रही है तो दूसरे की भी 40 पिंग ही आ रही है, क्योंकि वो पाँचों के पाँचों जो है वो एक ही लैन कनेक्शन पे बैठे हुए हैं। तो एक ये चीज़ है। तो ऐसा कुछ बूट कैंप का सीन है यहाँ पर फोर्स 1 का, या फिर आगे हमें देखने को मिलने वाला है? It's all under you can say construction. Like we have already arranged everything. यहाँ पे अहमदाबाद में हम सब ready कर रहे हैं. So like we have just signed up a week before. So we are just working on that. क्योंकि हमारे पास अभी तक जो setup था it was for PUBG Mobile. And now we are shifting to Cordon. तो हमको उसके हिसाब से हम पूरा setup डालेंगे. Like we'll be having a nice flat with lots of internet connection, not a single, there will be multiple internet connections. फिर हम वहाँ पे PCs भी सेटअप कर रहे हैं, so that people like अगर ये बोर हो गए कॉडम से, तो कम से कम थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ और खेल लिया। या ये बहुत अच्छी सोच आपकी। ओके, so that's what we are working on, and like it's just because of this lockdown we are getting a bit slow. So yeah, it's there. The boot camp will be there, and very soon they will be brought there. बहुत जल्दी इनको बुला लेंगे। पाजी का पता नहीं, पाजी आएंगे कि नहीं भाभी को छोड़ के। ओके, एक चीज एक्चुअली यही पूछने वाला था शुभम सर, आपने ही पूछ लिया कि
टीम्स में से किस किस का कंफर्म है, लाइक बूट कैंप जब आपका सेटअप हो जाएगा अहमदाबाद में, तो कौन कौन वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? मतलब जिसकी गारंटी है कि वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी और भी लोग जो है वो आ सकते हैं, तो किसका कंफर्मेशन किसका है कि वो देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे? सर मेरा कंफर्मेशन है कि मैं नहीं मिल सकता। ओके। एक्चुअली आई एम अ बिजनेसमैन ना, तो सुबह सुबह मेरा होलसेल का काम है, तो सुबह से शाम तक मैं होता हूँ दुकान पे, बट दोपहर को आता हूँ थोड़े टाइम के लिए घर पे, 1 और 2 आवर्स के लिए, एंड शाम को 6 बजे फ्री हो जाता हूँ मैं, तो उसके बाद आई प्ले COD, उसके टाइम है मेरे भाई पास। पापा डांटते नहीं है? सर अपना काम है सर। तो मेरा भी है सर, पर हाँ जी, मैं हाँ जी, हाँ जब जी। बैठता हूँ खेलने तब तो पापा जी आके पकड़ के झाड़ते हैं, वैसे बोलते वो तू तो काम कहते कर हैं ले पर या तो खेल ले। नहीं वो तो है, पर एडजस्ट सर करना पड़ता है, टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेता हूँ मैं, एडजस्ट हो जाता है। काफी टाइम से खेल रहा हूँ, तो थोड़ा मैं ये होलसेल करके इसलिए मैं जल्दी घर आ जाता हूँ, नहीं तो अगर कुछ और काम होता तो फिर इतनी जल्दी मैं फ्री ना हो पाता। ओके, अभी मैं बात करूँ पूरी टीम में, तो सबसे अग्रेसिव प्लेयर कौन है? लाइक चीज़ें जब तक ठीक चल रही हैं, लेकिन गेम में अगर कुछ भी गलत हुआ तो भाई मैं जा रहा हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो। शिकारी 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 शिकारी। मतलब वो मैरिड होने का फ्रस्ट्रेशन है या सही में गेम का ही होता है? नहीं सर, एक्चुअली मैरिड होने का पक्का कोई मैरिड नहीं होने का ही है। फ्रस्ट्रेशन है। ना 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 सर, मेरी लव मैरिज हुई है, मेरी वाइफ पूरा सपोर्ट करती है मेरे को गेमिंग अरे में, नाइस। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो गेम का ही फ्रस्ट्रेशन होता है थोड़ा बहुत, और जाने की बात नहीं होती, बस थोड़ा बहुत गुस्सा होता है गेम में, एंड नेक्स्ट राउंड में बिल्कुल कूल होता हूँ। एक राउंड में होता है कि हाँ वो भाई क्या कर दिया, उसके नेक्स्ट राउंड में मैं इनको हंसा रहा होता हूँ सर। ओके, मतलब इंस्टेंट गुस्सा आता है और इंस्टेंट ठंडा भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, एक और चीज़ जो मतलब एक तरह से राज रिवील करना कह सकते हो आप इसको, गर्ल्स फैन सबसे ज़्यादा किसके हैं टीम में? मतलब फॉलोवर या फैन कह सकते हो आप? अबिस के Zero girlfriends. Not girlfriend, that's girl fans. Nah, fancy zero. गर्ल फैंस, Girl fans है base. You're chick Zero, magnet, zero, right? zero. Oh, me. We call you that for I a mean- reason, man. Followers तो हाँ, followers क्योंकि I have a YouTube channel ना, so उनका subscribers तो मेरे follow करेंगे. Other than that तो हाँ, उतना ही ना. सर आपकी कास्टिंग के हम लोग फैन है सर, बहुत बड़े। अरे थैंक यू। आपने अपनी कास्टिंग की स्किल्स अभी कहाँ से आई सर, आप ये बताओ हमें राज। एक्चुअली इसका कोई राज नहीं है टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि मैंने कहा कि 7-8 साल से मैं गेम खेलना स्टार्ट किया, तो टेकन मेरा मतलब एक कहते हैं ना कि जहाँ से लोग स्टार्ट करते गेमिंग, आपका पहला गेम कौन सा था, तो कई लोग कहेंगे मारियो एंड ऑल, बट टू बी ऑनेस्ट मेरे घर में वीडियो गेम जैसे कोई सीन नहीं था, मेरे घर वालों को उस टाइम पे पसंद नहीं था। तो मैं क्या करता था, मैं मार्केट में जाके खेलता था, तो टेकन 3 से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो टेकन से स्टार्ट करके टेकन के मैंने टूर्नामेंट देखने स्टार्ट किए, तो एक कास्टर है टेस्टी स्टीव करके, वो टेकन 7 की कास्टिंग करते हैं इंग्लिश में, तो उनकी कास्टिंग लेवल मुझे एक नेक्स्ट लेवल लगती है, और उनसे ही मैं इंस्पायर हूँ। मैंने कहा यार ये बंदा जैसे कर रहा है, आई थिंक अगर थोड़ा सा भी मैं पकड़ लूँ उस लय को, तो हिंदी में उसी तरीके की मैं कुछ जो है वो व्यूवर को एंटरटेनमेंट दे सकता हूँ कास्टिंग लेवल से। तो वो अब चूँकि उस टाइम पे क्या है कि कास्टिंग मैंने जो स्टार्ट की थी जब पबजी लॉन्च हुआ था 2017 में मोबाइल वर्जन के लिए, फेब में, मैंने मार्च से ही कास्टिंग स्टार्ट की थी, बट किसी कारणवश मैं उतना ग्रो नहीं कर पाया टू बी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद तो 2 साल से मैं कास्टिंग कर रहा हूँ, इसीलिए इतना फ्लुएंट निकलती भी है हिंदी में। तो ये तो सर रीजन आज है। शायद ही COD में कोई हो जो आपके कास्टिंग का फैन ना हो। एंड ये एक रीजन शिकारी, ये एक रीजन मैं आपको बताना चाहूँगा सभी लोगों को। एक्चुअली पबजी में जब मैंने देखा ना कि यार इतना फेम नहीं मिल पा रहा है, इतनी मेहनत भी जा रही है, लाइक 30 मिनट तक लगातार मैं बोल रहा हूँ, फिर भी वो ग्रोथ नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, तो इसीलिए फिर डैडी प्रो ने सजेस्ट किया यार पबजी को छोड़ते हैं, बहुत हो गया पबजी, अब चलते हैं किसी और गेम की तरफ। तो फिर मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी में ट्राई किया, एंड एक चीज़ मैं थैंक यू जरूर बोलना चाहूँगा ग्लोबल ई स्पोर्ट का, कि बिल्कुल मैं नया था कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए, मुझे गेम नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने मौका दिया मुझे कि कोई नहीं, जनता कर्फ्यू लीग में फर्स्ट टाइम मैं आया था कॉल ऑफ ड्यूटी में, एंड
मतलब उनको पता था कि ये कर लेगा एंड मुझे भी पता था कि मैं कर ही लूँगा, बट मुझे गेम नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। डे 1 जो मैंने स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक कि मैं गन्स के नाम तक गलत बोल रहा था एंड चैट पर अरे भाई ये गन का नाम है, ये गन का नाम है। बट जब 1 से 2 गेम हो गए ना, जब कास्टिंग उन्होंने देखी तो पीपल लाइक लोगों ने भी बोलना स्टार्ट किया भाई गन नेम छोड़ दे, बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब गन का नाम तो आ जाएगा 2-3 दिन में, बट जिस तरीके से आपने स्टार्टअप लिया है वो काफ़ी इंजॉयबल है। मतलब एक Even we होता है remember, ना, bro. इवन एक You casted our first match. Yeah. हमारा TTP का first match you only casted. The हाँ. first match that was streamed, you were the one who spoke on it, who casted on it. So we remember. तो उसमें क्या था कि मतलब मैंने कहा मैंने यही कहा था कि यार गन और गेम का नाम छोड़ दो, आप गेम की नॉलेज छोड़ दो। वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी है कि मैं लोगों को बांध के रख सकता हूँ, लाइक वो बोर नहीं होंगे, भले ही गेम वन साइडेड हो बट मैं लोगों को बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी आज भी सर आप कोई वीडियो जब आपकी अपलोड होती है तो कोई वीडियो ऐसी नहीं होती जो मिस करें। अभी कमेंट्री आपकी कास्टिंग के लिए देखते हैं, जब कमेंट्री करते हैं उसमें उसके लिए वीडियो देखते हैं आप। अरे थैंक यू। अभी तो मतलब पूरा स्टार्ट कर दिया, पबजी तो था ही, कॉल ऑफ ड्यूटी में घुस चुके हैं, टेकन 7 की भी कास्टिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, टेकन 7 भी कास्ट कर चुका हूँ और वैलोरेंट का भी चल ही रहा है। कॉस्मिक बाइट का टूर्नामेंट है, उसमें वैलोरेंट की भी कास्टिंग में कर रहा हूँ। और आगे फ्री फायर में हो सकता है आपको नोमैडिक लॉवर का नाम फ्री फायर में भी देखने को मिल जाए। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट bro. थैंक यू। ओके तो गाइज आप लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई बिलीव आपका भी एक्सपीरियंस सेम ही रहा होगा। एंड कुछ एक चीज़ यहाँ पर जाते जाते ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा यार, ब्रैड यार नाम की स्टोरी आपने नहीं बताई। वो एक हमारी जनता के लिए सस्पेंस रह जाएगा यार। ओके तो यार सभी लोगों से बातचीत करके बहुत ही मज़ा आया एंड सब लोगों का शुक्रिया, अपने बिजी स्केड्यूल से आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आए, हमें टाइम दिया, कुछ चटपटी बातें की हम लोगों ने, मज़ा भी आया। एक जाते जाते कोई मैसेज कम्युनिटी के लिए आप देना चाहते हो, कोई स्पेशल मैसेज जो आप चाहते हो कि कम्युनिटी की तरफ आपकी बात पहुँचे, तो वो आप अभी बता सकते हैं। अभी रिसेंटली PUBG बैन हुआ है तो फिर स्ट्रीमर्स सब कॉडम कर रहे हैं, तो फिर बस एनवायरनमेंट उनके लिए फ्रेंडली रखो, ज्यादा टॉक्सिक ना हो। That's personally I think. ओके बहुत अच्छी बात बोली ब्रैड। And help करो, help them. Don't bully them saying oh look PUBG player. Don't say that. Help them, welcome them to our community. It will be the best for both of us. Any add on? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? माई एक्सपीरियंस विद PUBG, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि स्किल्स पे फोकस करो, स्किल्स अपने बढ़ाओ, फेम अपना बढ़ाओ, पैसे अपने आप आएंगे, पैसे के पीछे मत भागना कभी। ओके सो ऑलवेज वर्क ऑन योर स्किल्स। तो जो भी आ रहे हैं, जो भी ऑलरेडी है, उन सबको यही चीज़ बोलूँगा कि अपने स्किल्स अच्छे करो, बाकी सब अपने आप आएगा। यू डोंट हैव टू रन फॉर दैट। ओके तो जैसा कि आपने सुना गाइस, एक बेहतरीन बातचीत यहाँ पर हमारी फोर्स 1 की स्लॉट से हुई, जो पहले T2P के नाम से उनको जानते थे, बट अब आप फोर्स 1 से एक नई एनर्जी और एक नया जोश जो है वो टीम का देखने वाले हैं, तो वो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में जो आपको देखने को मिलेगा। एंड शुक्रिया सभी लोगों का यार ज्वाइन करने के लिए।